Morning, sir. Hello, 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 hello. Hello, good morning, student. Hello, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, Yeah, sir. good morning. So, okay, many students are now joining. So, welcome back, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYBCom 5th SEM. Subject is Computer System and Application. Second module is going on. Today, we have to see the all select statement queries presented by Assistant Professor Bipin PY. So related that, we have to do the all select statement. We have already done this select statement in the marks table, right? Last time. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah. The last time we are completed up to this, right? So we'll continue from this calculating columns and all that. We have done all functions. Last time we have done all built-in function, string function, built-in function. But some of the calculated function also there. So that we have to see with using queries and table. So start all program MySQL and MySQL command line client, right? Give the password, that is you are already set admin,
printer, and we can see the command prompt. Now let's start now. First of all, we don't know, we are already created database. So we have to write the command show databases, enter. Yes, we have already created TYBCom1. So we have to use TYBCom1 semicolon enter. We don't know tables are there or not. So show tables, list of the tables, command says show tables. Enter, we get the marks table. We have already deleted the first sample table. So now it is marks table is there. So we have to see the describe structure of the table. So describe marks, enter. So we get that, right? Okay, fine. So these are all there. No, don't worry. We have to see the record also. So select star from marks semicolon enter. We get the record also, right? So 5 records are there. So we can start our command related select. Already we have written the select command. See that now command select star from marks. That means we are showing all records. Is it right? All columns from the table. Yes, sir. Select all and all columns from the table. That means star. Now particular column. So select RNO and S name from marks. That means we are selecting only 2 columns and all rows. 2 columns and all rows. Is it right? Hello? Yes, sir. Hello? Okay. So we're selecting only 2 columns from the table, roll number and S name. After that, select, suppose we want to see the all rows from marks table, but condition is there where I want to find only Vijaya record. So where S name is equal to Vijaya. So in the code single inverted comma Vijaya and then semicolon. So we can see the only one record at a time because we are using their where clause. See that now where clause. Select star from marks where S name is equal to Vijaya. So we can get only Vijaya record. Yes, student? Hello? 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 Yes, sir. What is that? Yeah, that is where clause. Where clause gives the condition. What is the condition? Those names. Yes. Who is that? Hello. Okay. Where condition is there? Where clause. S name is a name. जिसका नाम विजय है, उनका record हम लोग दिखा रहे. Is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. फिल्टर कर रहे. Yeah, that is condition. So where clause ऐसे यूज करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. क्या हुआ? Your network problem, बेटा. Please solve it properly. Don't move the mobile anywhere. Sit at proper side, and then just keep the mobile aside and watch it only. Don't touch it, nothing. Just mute, unmute. That is okay. One finger you can raise. Okay, fine. So now there is a where clause. Condition is there. S name is equal to Vijaya. So that is your what one record we can find out. Suppose I want to find out roll number 4th record. Roll number 4. So select star from marks where RNO is equal to 4. 4 is a number. That's why don't write with the single inverted comma. Directly you can write the number. Enter. So we can find out the 4th number record. Condition is there where roll number is equal to 4. Got it? Yes, student? Hello? Yes, Hello? Sir. Yes, sir. Yes, student? Sir. Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hello? Hello. Hello? Hello, hello. Hello. आवाज आ रही है? We can hear you, sir. Yes, sir. मुझे कोई रेज आप आंसर नहीं करोगे, यस नो बोलोगे नहीं तो आप इसका मतलब सो रहे हो. इज इट राइट? बराबर है ना?
I नहीं thought सर you are not listening. टाइम लागेगा अभी तक 17 मिनट 18 मिनट आवाज ना है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, Yes, sir. सर आपको मुझे मुझे हेडफोन में आवाज नहीं आ रही. जस्ट वेट. ओके सर Is the speaker? Yeah, now it is voice has come. Okay, fine. Hello, आवाज आ रही है अभी? सर हाँ सर हाँ सर आ रही है. Yes, sir. Okay, thank you. So select star from marks where RNO is equal to 4. That is the condition. So two condition I have given. एक from name से दिया, जहाँ पे name में values we have to put it in the single inverted, और एक roll number से दिया, वहाँ number value था, इसके लिए without inverted condition where field name is equal to value. Is it clear? Suppose हम लोग को marks जिनका marks 1 greater than 60 है, उनका record देखना है. So select star from marks where marks 1 is greater than 60. जिनका marks 1 greater than 60 है condition. So जिनका marks 1 greater than 60 है, वैसे 4 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं है, right? See that marks 1 75 76 84 71, right? तो एक स्टूडेंट है, यानी कि रोल नंबर 1 का मार्क्स 1 लेस देन 60 है. सपोज ऐसे ही लेस देन दे देते, लेस देन उल्टा कंडीशन करते, मार्क्स 1 लेस देन 30. हु गॉट द लेस देन 60? लेस देन 60 में वन स्टूडेंट. नाउ यू गॉट इट. नयन इज द स्टूडेंट who got the marks 1 less than 60 or other one get the marks 1 greater than 60. Got it? ओके इस तरह कंडीशन देके हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं और पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो कर सकते हैं. इज इट क्लियर? दैट इज ऑल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू सी दैट, फाइंड आउट द रिकॉर्ड. इज इट क्लियर? हेलो हेलो. यस सर Yes, sir. yes sir Yes, sir. Okay, now come to the your point, calculating columns. See that now, calculating columns. नहीं, यहाँ नहीं, पे कमांड दिया है display all columns, total marks and average of marks from the marks table. So आपको यहाँ पे ये सब लोग लेट ज्वाइन होते हैं ना, उनको अभी नेक्स्ट टाइम से मैं ज्वाइनिंग नहीं करूँगा. आफ्टर 5 minutes I will not join you next time. Remember properly. Those who are joining now, Neha or all students, those who are that all students. Okay, late joining 5 minutes after I will not join you. Is it clear? Hello student. यस सर इट इज क्लियर Yes, sir. क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब लेक्चर में डिस्टर्बेंस करते हो. एक तो आपका लेक्चर 50 मिनट्स है और ऊपर से आपका 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं, BSc की तरह आराम से ले सकते हैं. इट इज ओनली 50 मिनट्स, उसमें हम लोग को ज्वाइनिंग मीनिंग में 10 मिनट जाते हैं. So you should be prepared, alert. Before 10 minutes, you will be alert on your mobile, desktop, laptop. Be ready, and then join before 9:05 is the last time. उसके बाद मैं एडमिट नहीं करूंगा. ये बार बार बीच में एडमिट होता है ना, मतलब लेट ज्वाइनिंग है, क्योंकि इसमें ऐसे फैसिलिटी है, एक बार एडमिट करने के बाद ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग है, राइट? ओके फाइन. Yes, sir. यस सर So we'll continue because they are disturbing. कॉल कभी भी 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे. अभी 15 मिनट हो गए फिर भी आप ज्वाइन नहीं हो रहे, इसका मतलब यू आर वेकअपिंग अर्ली और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन. सो डिस्प्ले ऑल कॉलम्स, टोटल ऑफ मार्क्स एंड मार्क्स फ्रॉम मार्क्स टेबल. वहाँ पे हम लोग को करना है. तो डिस्प्ले ऑल कॉलम्स दिखाना है, मतलब स्टार आ गया. तो देखो कमांड में देखो, सिलेक्ट स्टार कॉमा टोटल ऑफ मार्क्स. टोटल ऑफ मार्क्स कैसे निकाला है देखो, M1 M2 प्लस M3 और एक नाम दिया कॉलम टोटल, स्पेस देके, देन कॉमा. एवरेज कैसे निकाला है देखो, M1 प्लस M2 प्लस M3 इन द ब्रैकेट एंड डिवाइड बाय 3 और उसके बाद स्पेस देके आपको नाम दिया हुआ है एवरेज, AVG. दैट इज कॉलम नेम फ्रॉम मार्क्स. इज इट क्लियर? तो चलो हम लोग देख लेते हैं. देखो अभी भी आया है, कौन है? नितेश कुंदर.
Nitesh, if you join late, we will not join you next time. Is it clear? Hello? Nitesh. Who is Nitesh? Nitesh, can you hear me? Sir. Nitesh, next time we will not join you. You are coming late. So much disturbing after 15 minutes. We have to just do the admission. Okay, sir. Sorry, sir. Select star, comma, M1 plus M2 plus M3. And then we are writing the title total, comma, again average M1 in the bracket because in the we have to create the group of that value. So M1 plus M2 plus M3, and after that divide by 3. That is called average. So we are putting their heading AVG or average. Okay, that is a solve columns total average from marks table. So this is the command, the calculations column. See that now we are getting answer. Roll number, S name, birth date, marks 1, marks 2, marks 3 is already there. But now we are, that is called select star, all records, all columns. But total column you are extra put it over there. So total is there, and then after that average there. Is it clear? How you calculate the total? See that now M1 plus M2 plus M3, and we are putting the column in total, comma, M1 plus M2 plus M3 divided by 3, because 3 subjects are there, that's why divided by 3. So 3, we are getting the average. Got it? Yes, student? सर अगर हम लोग Yes, को sir. टोटल नहीं Yes, हेलो sir. सर Yes, sir. हेलो got it. सर One by one. हेलो हाँ. Yes. हेलो सर अगर टोटल नहीं चाहिए लाइक जो 180 दिया है वो टोटल हम लोग को हटाने का है तो हम लोग सिर्फ इतना तो लिख total नहीं सकते हैं लिखोगे. ना टोटल Yes. नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा Average ना B is not Average right सिर्फ like average आएगा. average. Only we can say that average now. See that now. Select star from M1 plus M2 plus divided by 3 average. We can see only average. जो कैलकुलेशन आपने 3 क्वेरीज थे ना, वहाँ 3 थे तो 3 आए, 2 थे तो 2 आए. सिलेक्ट स्टार करोगे तो एक ही क्वेरीज आया. कॉमा क्यों दे रहे हो? बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वेरीज. स्टार ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम. सेकेंड क्वेरीज एवरेज. थर्ड हम लोग ने टोटल डाल. तो इस तरह हम लोग जितने क्वेरीज पूछे उतने को प्रॉब्लम सॉल्व. गॉट इट? यस. हेलो हेलो. Yes, sir. Got it. Sure. ऐसा got it. Okay, fine. So that is your columns queries. देखो calculating columns पहला पार्ट हो गया. अभी सेकेंड पार्ट में देखो उन्होंने क्या दिया है. डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ M1. हम लोग को खाली M1 के परसेंटेज देखने, मतलब मार्क्स 1 के परसेंट. ओके, और उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है परसेंटेज किसके हिसाब से होने चाहिए. M1 ऑन टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स के अंदर मार्क्स 1 का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट वी हैव टू फाइंड. तो कमांड है सिलेक्ट, और क्या दिखाना है उन्होंने बताया था, नेम ऑफ द स्टूडेंट. तो एस नेम, पहले एस नेम दिया. देखो सिलेक्ट एस नेम पहले दिया, फिर कॉमा, नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया, फिर परसेंटेज ऑफ M1 ऑन टोटल मार्क्स फ्रॉम मार्क्स टेबल. सो परसेंटेज ऑफ टेबल्स, दैट्स व्हाई मार्क्स 1 इनटू 100 डिवाइड बाय मार्क्स 1. उसके ऊपर आपका M1 M2 M3, M1 प्लस M2 प्लस M3, उसके ऊपर आपका परसेंटेज है. डायरेक्ट नहीं है, टोटल के ऊपर जो टोटल आएगा उसके ऊपर M1 का परसेंटेज. दे आर गिवन देयर ऑफ टोटल मार्क्स. ओके, देन फ्रॉम मार्क्स सेमीकोलन, एंटर. सॉरी, मार्क्स की स्पेलिंग रॉन्ग है. अच्छा, सॉरी, हो सकता है ये मेरे हैंड मिस्टेक है, यूजर मिस्टेक. सो नाउ वी गॉट इट. मार्क्स एस नेम. सो एस नेम में ऑल नेम दिखाई दिए, और उसके बाजू में परसेंटाइल ऑफ मार्क्स 1 डिपेंड ऑन टोटल मार्क्स. गॉट इट? ये स्टूडेंट. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Got it. फाइन. या नेक्स्ट, यूज ऑफ फंक्शन विद द स्ट्रीम, अपर नेम, लोअर नेम. देखो इस तरह के. तो डिस्प्ले नेम इन अपर केस एंड नेम इन लोअर केस फ्रॉम मार्क्स टेबल. आपको 3 चीजें दिखाने. तो कैपिटल लेटर योर एस नेम, फिर एज इट इज, आफ्टर द लोअर. तो आपको कैसे करना है क्वेरी. तो सिलेक्ट अपर इज द फंक्शंस, यू कैन राइट कैपिटल स्मॉल इधर. देखो और भी एक आ गया, मीनाज शेख. हेलो मीनाज शेख. हेलो हेलो मीनाज.
Minaj Sheikh. Hello. 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 Minaj. Who is joining now? Minaj Sheikh. Hello, Minaj. देखो और दो पीपल आ गए, इसका डिस्टर्बेंस है। मीनाज आ गया है। That is the problem. They are late joining. That is the problem. Big problem. So now upper S name, comma, then S name, comma, after that lower in the bracket S name. Okay. So what is that? पहले हम लोगों ने कैपिटल लेटर किया, फिर as it is name S name, फिर lower S name small letter from marks table semicolon press enter की. You can see that capital letter S name सारे नयन विजय अजय सब क्या है कैपिटल लेटर में आए. आफ्टर दैट S name as it is, फिर लोअर में है सारे स्मॉल लेटर. Got it? Yes, sir. Clear? Yeah. This is query. Select query. Now I already put it that title. Select statement queries, right? तो ये सारे select query. Data manipulation. All parties are data manipulation. Display name first 2 character of name and last 3 character of name and 2 character of starting from 3rd character of name. देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट और मिड ये फंक्शन यूज हुआ. तो सबसे पहले सिलेक्ट एस नेम, हम लोग को नाम बोला हुआ है, ठीक है. उसके बाद आपको बोला हुआ है लेफ्ट साइड फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ नेम, फर्स्ट 2 कैरेक्टर यानी कि पहले लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर. तो लेफ्ट फंक्शन एस नेम फील्ड नेम और कितने कैरेक्टर 2. Left in the bracket S name is the field name, comma, how many character you want to show? 2, starting 2 character, comma. After that right S name means right what? Right side से 3 character दिया है उधर. Last 3 character of a name, last 3 मतलब right side से, right S name right side से मतलब last character है, last से 3 character. Okay, then next 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd कैरेक्टर. अभी यहाँ पे स्टार्टिंग कैरेक्टर दिया है, वहां मिड आएगा सबस्ट्रिंग. सो मिड इन द ब्रैकेट एस नेम कॉमा स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या दिया है? स्टार्टिंग फ्रॉम 3. तो पहला स्टार्टिंग कैरेक्टर 3. कितने कैरेक्टर निकालने हैं? तो 2. स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd एंड 2 कैरेक्टर वी हैव टू शो फ्रॉम मार्क्स टेबल. नाउ वी कैन सी दैट नयन फुल, फिर लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर, राइट साइड से 3 कैरेक्टर और स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd से 2 कैरेक्टर. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir. Okay, that is Yes, the sir. string functions they are using. Next one, reverse length, this like that functions. So देखो अभी reverse length क्या काम है? Display name, reverse number of character in a name, कितने कैरेक्टर है वो फाइंड आउट होगा वैल्यूज में फ्रॉम मार्क्स टेबल. तो सिलेक्ट एस नेम रिवर्स एस नेम. ओके, रिवर्स मीन्स उल्टा. नयन रहेगा तो नयन का सेम रहेगा बट विजय का उल्टा आएगा. लेंथ और उसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द साइज ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग. तो लेंथ इन द एस नेम from marks table. Is it clear? So we can find out what S name पहले पूरा लिखा नाम, फिर रिवर्स में देखो उल्टा आ गया, दिख रहा है नयन विजया अजय आया जीव आया ना, उल्टा आया सबका. दैट इज रिवर्स, उल्टा. ओके, वी कैन से दैट पैलिंड्रोम किसको बोलोगे? मतलब नयन को हम लोग पैलिंड्रोम बोल सकते हैं. क्यों बोलो नयन को पैलिंड्रोम? उल्टा करो कि सीधा करो स्पेलिंग सेम होने वाला है. जैसे मैडम इज अ वर्ड, इट इज पैलिंड्रोम. गॉट इट? नेक्स्ट लेंथ देखो 5 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, 4th कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर एंड 4th कैरेक्टर. गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. आगे. ओके. Sir. नेक्स्ट वन, डिस्प्ले नेम, वीकडे नेम एंड मंथ नेम फॉर ईच रो फ्रॉम मार्क्स टेबल. आपको इसके अंदर नाम दिखाना है. वीकडे नेम बर्थ डेट के हिसाब से वीकडे नेम दिखाना है और मंथ नेम दिखाना है. तो आप लोग क्वेरीज लिखोगे, सिलेक्ट एस नेम पहले, फिर कॉमा डे नेम.
हम लोग को डे नेम फाइंड आउट करना है, वीकडे नेम। सो किसके लिए? बर्थ रेट, जो हम लोग का कॉलम है बर्थ रेट, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उसका कॉलम का नाम बर्थ अंडरस्कोर dt, कॉमा, फिर मंथ नेम ब्रैकेट, उसके अंदर हम लोग को बर्थ अंडरस्कोर dt, फ्रॉम मार्क्स टेबल, सेमीकोलन, एंटर। यू कैन सी देयर आपके बर्थ डेट के हिसाब से मंडे, अभी आप लोगों ने बर्थ डेट मालूम नहीं तो मंडे ट्यूसडे मालूम नहीं पड़ रहा है। सपोज हम लोग बर्थ डेट भी डिस्प्ले कर लेते, यहाँ पे वी आर डिस्प्लेइंग आफ्टर एस नेम बर्थ अंडरस्कोर dt, कॉमा, देखो आपका बर्थ डेट भी आ रहा है। तो 1988 11/7 को नवंबर मंथ था, बराबर है, और वहां पे अगस्त 58 अगस्त 19 को मंडे और अगस्त, फिर थर्सडे को दिसंबर, फ्राइडे को अगस्त, दिखाई दे रहे हैं सारे डे नेम और सारे मंथ। गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Next, after that, concatenation, very important functions, concat function. If you want to joining the 2-3 field value together, आपको field value एक साथ join करना है, तो concat function है। So they display this message with the sum of the extra message। हम लोग को दिया है, देखो display message name दिखाना है हम लोग को, और आगे दिखाना है has scored marks 1 in this subject। Okay, ऐसे display करना है। तो select concat is a joining to string। concat में हम लोग ने एस नेम मतलब आपका नाम, कॉमा, क्या ज्वाइन करना है आगे, ऐसे लिखना है कोट्स के अंदर। इट इज अ टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, हैज स्कोर्ड, ओके, हैज स्कोर्ड। उसके बाद उनको दिखाना है मार्क्स 1 दिखाना है, कॉमा, अगेन उसके आगे लिखना है इन सब्जेक्ट 1, तो कोट्स के अंदर इन सब्जेक्ट 1। गॉट इट? यस स्टूडेंट? आगे आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों बताओ? कोट्स के आगे क्योंकि आपको एक स्पेस दिखाना पड़ेगा उधर, दैट्स व्हाई। देन ब्रैकेट क्लोज, कॉन्कैट इज ओवर, देन फ्रॉम मार्क्स, सेमीकोलन, एंटर। एरर, अच्छा मार्क्स का स्पेलिंग, सॉरी, मार्क्स, एंटर। सो वी कैन गेट इट आंसर लाइक दैट। नयन हैज स्कोर्ड 50 इन सब्जेक्ट। देखो 50 के आगे भी स्पेस नहीं आया, इसका मतलब हम लोग को स्कोर्ड के बाद भी एक स्पेस देना चाहिए। नाउ गॉट इट? यस? नयन हैज स्कोर्ड 50 इन सब्जेक्ट 1, विजय हैज स्कोर्ड 75। देखो हम लोग ने वो टेक्स्ट भी इंसर्ट की उसके अंदर जो हम लोग को चाहिए। तो एक सेंटेंस लाइक वी वांट टू डिस्प्ले, सो कॉन्कैट फंक्शन इज देयर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Concat, join the string, joining the two field value join करना है, concat करना है, तो आपको इस तरह का फंक्शन यूज करते हैं। आगे और concat में दिया हुआ है, देखो concat में आगे दिया है select concat total marks उनको दिखाना है, total कोट्स के अंदर, सॉरी कोट्स के अंदर total marks scored by ओके, स्कोर्ड बाय, फिर स्टूडेंट्स का नाम, स्कोर्ड बाय के बाद स्टूडेंट्स का नाम, एस नेम इज, फिर कॉमा, अगेन कोट्स के अंदर इज, ओके, उसको भी स्पेस देते हैं, अगेन कॉमा, इज क्या करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल, m1 बना, अभी निशा गोडको ने ये वापिस ज्वाइन हो, m1 plus m2 plus m3, okay, bracket close, then from marks. Is it clear? Now see that total marks scored by 9 is 180. okay, उसके आगे भी स्पेस देना होगा, तो each के बाद भी स्पेस देना पड़ेगा, each के बाद भी स्पेस, या तो सिंगल इन्वर्टेड इज अ स्मॉल मैनुअल स्ट्रिंग, और मैनुअल स्ट्रिंग हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है? Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, now they are joining the birth date, day name, month name, day, year, birth date, इस तरह भी दिखा रहे हैं। देखो हम लोग के हिसाब से डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वही भी कमांड आप कर सकते हो इजीली। सो कमांड्स आर देयर, select, this is a command, select s name, comma, concat in the bracket, day name में birth date, तो day name
in the bracket birth underscore dt, ठीक है, देन कॉमा, उसके बाद आपको क्या दिखाना है, डैश, सपोज डैश दिखाना है तो यू कैन पुट इट देयर डैश इफ यू वांट टू शो देयर डैश, ओके, कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं, या अदरवाइज कंटिन्यू, जो भी इक्वल साइन वगैरह डैश साइन आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड में वगैरह, या इक्वल, जो भी। आगे उन्होंने मंथ नेम दिखाया हुआ है तो मंथ नेम इन द ब्रैकेट बर्थ अंडरस्कोर dt, उसके बाद उन्होंने डे दिखा है, कॉमा, इक्वल लिखा है, आगे लिखा है डे, तो डे दिखा है बर्थडे, हर एक अलग अलग फंक्शन फॉर सेम डे, मंथ नेम, डे, ईयर, आगे दिया है ईयर, बर्थ अंडरस्कोर dt, ओके, हो गया। तो ये हुआ पूरा कॉन्कैट, कॉन्कैट मीन ज्वाइन दिस। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको स्पेस के लिए आगे हमेशा कोट्स के अंदर क्या देना पड़ेगा, एक सिंगल स्पेस या डैश, या जो भी आपको सिंगल स्पेस कॉमा ऐसे करके डैश देना पड़ेगा हर एक फंक्शन के आगे, अगर आपको स्पेस देना है, कॉमा, लाइक दैट। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. या ऐसे स्पेस देना, Yes, एंड sir. 2 ब्रैकेट क्यों क्लोज हुए, तो एक कॉन्कैट का और बाकी सारे फंक्शंस के अपने आप अंदर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हुआ, फ्रॉम मार्क्स सेमीकोलन एंटर, सॉरी मार्क्स बराबर है, क्या प्रॉब्लम है अभी, कॉमा, अच्छा एक में कॉमा देना भूल गए, या ईयर के एंटर, या नाउ सी दैट नाउ कॉन्केंडेशंस, उन्होंने नल क्या लिखा, पहले मंडे आया दैट इज योर डे नेम, फिर मंथ नेम आया दैट इज नवंबर, फिर डे आया 7 डेट दिखाया, फिर ईयर दिखाया। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, Sir. sir. yeah, so Yes, this sir. way we can joining the birthday, okay, joining the birthday। अगर हम लोग को Okay. यही बर्थडे, हम लोग को यही सारी चीजें अगर स्लैश स्लैश से दिखानी होगी, तो वो यहाँ पे एक फंक्शन लिया है डे मंथ एंड ईयर, स्लैश स्लैश से दिखाना है, तो किस तरह दिखाओगे देखो, सो वी कैन सी देयर डे मंथ ईयर, सिलेक्ट, ओके, कॉन्कैट ws, एक नया कमांड है, कॉन्कैट ws, ओके, विथ स्ट्रिंग, उसको बोलते हैं कॉन्कैट विथ स्ट्रिंग, मतलब विथ स्ट्रिंग के साथ, क्या स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, तो एक स्लैश साइन सबके लिए, सारे फील्ड नेम जितने भी फील्ड नेम रहेंगे उधर स्लैश स्लैश आएंगे, तो क्या फील्ड नेम दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डे इन द बर्थ डेट बर्थ अंडरस्कोर dt, पुनः दरवाजा बंद है, बर्थ अंडरस्कोर dt, कॉमा, देन मंथ in the bracket birth underscore dt, then comma, राइट साइड से ईयर और 2 ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई भी ऐसे राइट साइड से 2 मतलब समझते हैं, राइट साइड से 2 ही, मतलब 2020 रहेगा तो 20 दिखाए, 99 रहेगा तो 99, इसलिए उन्होंने राइट फंक्शन लिया, राइट ईयर इन द ब्रैकेट बर्थ अंडरस्कोर dt एंड देन कॉमा 2, 2 फंक्शन एक साथ मर्ज किए, फाइन, एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्प्लेइंग दैट बर्थ डेट करके टाइटल, मतलब अलाइस नेम, ओके, अलाइस नेम बर्थ डेट एंड फ्रॉम मार्क्स, एंटर, क्या दिखाई दे आपको, बर्थ डेट, लेकिन हमारे फॉर्मेट में डे मंथ ईयर, ईयर भी कैसे आया देखा, 88 क्यों आया, बिकॉज राइट साइड से हम लोग ने 2 डिजिट्स खाली लिए हुए। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, Yes, sir. It is clear. क्लियर? Yes, sir. या वेरी गुड। So this function is used to concat, लेकिन स्लैश स्लैश आप देख सकते, ये फंक्शन क्यों यूज किया है, concat with string, स्लैश, सब जगह पे स्लैश अपने आप आ गया, क्यों आया डबल, अगर मैं स्लैश की जगह डॉट साइन रिप्ले करता हूँ तो डॉट दिखाई देगा, स्लैश की जगह अगर मैंने concat with string डॉट दिखाया तो मुझे डॉट दिखाई देगा, अगर मैंने डैश दिखाया, सपोज डैश दिखाया तो डैश आएगा। concat डॉट की जगह डैश, तो देखो डैश आ गया। Is it clear? Hello, that joining the string with string, ये जो string Yes, sir. यहाँ कोड्स में स्पेसिफाई किया है वही string वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, each and every field. Got it?
Clear? Yes, sir. Yeah, very good. So now continue with your next command. लिमिट क्लॉज। चलो वेयर क्लॉज सॉरी कैलकुलेशन क्लॉज खत्म हो गए, अभी लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज इज यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज दैट आर डिस्प्लेड। हम लोग को नंबर ऑफ रोज मतलब पर्टिकुलर 5 ही रिकॉर्ड दिखाने हैं, 2 ही रिकॉर्ड दिखाने हैं, इसके लिए लिमिट क्लॉज दिया हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं, वेट नाउ। Who is that? ओके, ना यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। अभी लिमिट क्लॉज, तो लिमिट क्लॉज में यहाँ पे लिमिट क्लॉज में हम लोग ने अगर सी दैट अगर सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं तो हमारा कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, दैट इज ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स, राइट? ओके, बट ओनली 2 रिकॉर्ड, ओनली 3 रिकॉर्ड, पहले फर्स्ट 3 रोज, लास्ट के 3 रोज, ऐसे वगैरह देखना है तो लिमिट क्लॉज का यूज होता है। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, बट लिमिट दिया है लिमिट 3, यानी कि 3 फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स हम लोग को देखने हैं। क्या कमांड दिया है उन्होंने? टू डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट 3 रोज फ्रॉम द मार्क्स टेबल, फर्स्ट 3 रोज। एंटर। आपको 5 रिकॉर्ड में से पहले 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग लिमिट क्लॉज। लिमिट 3, गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो? Yes, sir. Got it. Yes, sir. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, लेकिन उसमें से फर्स्ट 3 रोज, इसलिए लिमिट क्लॉज यूज करके लिमिट 3 लिखा हुआ है। गॉट इट? अभी आगे देखते हैं क्या दिया है। देखो आगे 3 मींस डिस्प्ले द ओनली 3 रिकॉर्ड, टू डिस्प्ले द 3 रोज स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रिकॉर्ड। लेकिन अगर मुझे 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं बट सेकेंड रो से स्टार्ट करना है, क्या बताएं? 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं बट सेकेंड रो से स्टार्ट करना है, तो सेकेंड रो स्टार्टिंग लिमिट क्या दिया है? सेकेंड से स्टार्ट करके 3 रिकॉर्ड। तो सेकेंड से स्टार्ट करके मतलब क्या आ गया? सेकेंड क्या हुआ? सेकेंड रिकॉर्ड्स उन्होंने क्या लिया? डायरेक्टली थर्ड, 3 4 5। क्यों ऐसा क्यों आया? तो रीजन बिहाइंड दैट, रीजन है वहां 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होता है, तो यहाँ 1 से अभी आपका काउंटिंग बता था। देखो यहाँ पे दिया है टू डिस्प्ले 3 रोज फॉर स्टार्टिंग 3 रिकॉर्ड, वो आ गया। बट सेकेंड 2,3 दिया ना हम लोग ने, तो 2 से 3 रिकॉर्ड, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग रिकॉर्ड दिया हुआ है सेकेंड, लेकिन वो सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ? 0 इंडेक्स नंबर होता है, 0 1 2, मतलब थर्ड रिकॉर्ड से उसने 3 रिकॉर्ड आए, उसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 एंड 2, तो 0 1 2 मतलब 2 मतलब क्या हुआ? उसका थर्ड रिकॉर्ड। इज इट गॉट? हेलो, इज इट राइट? हेलो सर, क्या? तो सेकेंड मतलब आपका क्या हुआ? 0 1 2 मतलब थर्ड रिकॉर्ड, और थर्ड रिकॉर्ड से 3। चलो थर्ड रिकॉर्ड से अगर मुझे एक ही निकालना है, ओनली 1 रिकॉर्ड, तो आप देखो 1 रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ? ओनली थर्ड आया। चलो 2 की जगह 1 लेते, तो 1 से क्या हुआ? सेकेंड आया, राइट? सो वो 1 से मुझे 4 रिकॉर्ड देखने, तो 1 से 4 रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ? सेकेंड से स्टार्ट करके 5, वो +1 करने, उधर वो स्टार्टिंग जो दिया है ना 1, उसका मतलब +1, क्यों? क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। गॉट इट? यस स्टूडेंट? देखो कोई कोई और भी ज्वाइन हो रहा है। चल Yes, 5। Yes, sir. ओके, क्लियर अबाउट दैट? लिमिट का मतलब जैसे यहाँ दिया है से टू डिस्प्ले ओनली थर्ड रिकॉर्ड, तो हम लोगों ने क्या किया? लिमिट 2, 1 ऐसे लिख। क्लियर? yes sir, अगर हम लोग Yes, ने sir. अगर हम लोगों ने 15 रिकॉर्ड भी लिखा इधर 1 से 15, लेकिन जितने रिकॉर्ड रहेंगे उतने ही रिकॉर्ड दिखाएगा, उससे ज्यादा रिकॉर्ड तो दिखाएगा नहीं। इज इट क्लियर? हेलो? yes sir, या, so that is your limit sir. clause is over. Fine. अभी आया वेयर क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने वेयर क्लॉज देखा हुआ है, एस नेम इक्वल टू, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर यूज होते हैं वेयर क्लॉज के साथ में। इक्वल,
नॉट इक्वल कैसे लिखते हैं देखो, लेस देन, ग्रेटर देन एंड एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल. फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नल सेव इक्वल टू, इज नल भी ऑपरेटर है. फिर आफ्टर दैट ये मंशी जहां अभी ज्वाइन हो रहा है. Okay, those who are late joining, next time we will not join you after 5 minutes. Okay, remember those अभी आज आए थे ना लेट, जितने भी नितेश हो या नेहा हो या अभी जो ज्वाइन हुए हैं बहुत सारे जन. So these are all students. Remember properly. Next time Monday या Saturday में लेक्चर में आपको 9-5 उसके बाद मैं आपको ज्वाइनिंग करना अलाउड नहीं करूँगा. भले 8 स्टूडेंट हो या 8 स्टूडेंट को पढ़ाऊँ. आप खाली अटेंडेंस के लिए ज्वाइन हो रहे हो तो ज्वाइन मत हो जाओ. इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्स. दैट इज द मिनिमम मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, इसके बीच में वैल्यू लिखना, मतलब बिटवीन. ओके. आफ्टर दैट इन मतलब उसके अंदर की वैल्यू, इनपुट वैल्यू. लाइक ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं. उस क्लॉजेस में ऑपरेटर उन्होंने दिए है, तो वो ऑपरेटर हम लोग को देखना है. तो अभी हमारा क्लॉज चालू है वेयर क्लॉज और विथ ऑल ऑपरेटर. देखो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर m1 इज इक्वल टू 75. क्या बताया उन्होंने कि जिसका मार्क्स 75 इक्वल है उसका रिकॉर्ड दिखाओ. तो वी हैव टू फाइंड आउट देयर. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स. ओके. where is the conditions, या कंडीशन दे रहे. कंडीशन क्या दे रहे देखो, m1 is equal to 75. जिनका मार्क्स 1 इक्वल टू 75 है उनका रिकॉर्ड दिखाओ. एंटर. क्या दिखाई दिया आपको? मार्क्स 1 में एक ही रिकॉर्ड आया जिसका मार्क्स 1 इक्वल 75 है. इज इट क्लियर? Yes, Hello? sir. या. Yes, sir. नेक्स्ट, सपोज इक्वल की जगह हम लोगों ने ग्रेटर देन दिया. सपोज ग्रेटर देन में हम लोग एक ही एग्जांपल में सब देख सकते. ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 70, मोर देन 70. इक्वल टू दिखाई दिया? इक्वल टू दिखाई दिया? नहीं. ग्रेटर देन 75 इज 76, 84. दो रिकॉर्ड दिखाई दिया. नॉट अ इक्वल टू दिखाई नहीं दे रहा है. सो नेक्स्ट वन, पुनः दरवाजा बंद है. ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों इक्वल होने वाला और ग्रेटर देन 75 होने वाला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है. मार्क्स 1, those who have the marks 1 greater than and equal to 75, these records we are displaying over here. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah. Suppose less than, उल्टा करते हैं. Less than 75. Less than 75 में और दो रिकॉर्ड है. The marks 1 is less than 50 and 71. देखो लेस देन है ना, लेस देन 70. अगेन लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू. लेस देन एंड इक्वल टू में क्या हुआ? 50, 75 एंड 75. 75 ऑल्सो डिस्प्ले. इज इट क्लियर? Yes, sir. या. अगर नॉट इक्वल टू उल्टा देते हैं. नॉट इक्वल टू ऐसे भी दे सकते हो या ऐसे भी दे सकते हो. एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू या दो लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, दैट इज कॉल्ड नॉट. मार्क्स 1 जिनका नॉट इक्वल टू 75. अभी नॉट इक्वल टू मतलब ओनली 75 छोड़ के, नॉट इक्वल टू 75 बाकी सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं. गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके. सारे ऑपरेटर समझ में है? दैट इज ऑल रिलेशनल ऑपरेटर वी आर यूजिंग ओवर हियर इन द कंडीशंस. ओके. इज इट क्लियर? ओके. So next one command in the where clause, हम लोग को थोड़ा next one command क्या करना है कि दो कंडीशन एक साथ ज्वाइन करना है. दो कंडीशन, यहाँ बराबर से स्कैनिंग नहीं हुआ है. ओके फाइन, कोई इशू नहीं है. हम लोग को दो कंडीशन दे रहे हैं हम लोग, जिनका मार्क्स 1 एंड ऑपरेटर एंड और मार्क्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है. ओके.
और एंड मतलब ज्वाइनिंग द टू कंडीशन जिनका मार्क्स 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड ओके एंड देखो एंड लिख रहा हूं एंड जिनका मार्क्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है या अदरवाइज ऑल मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 ऑल आर ग्रेटर देन 60 उनका रिकॉर्ड दिखाओ. There is only 2 records are there who got the marks 1 marks 2 marks 3 are greater than 60. Is it right? ये धर्मेश दही अभी ज्वाइन हो रहा है. सबको नोट डाउन कर रहा हूं. ओके, इज इट राइट? हेलो स्टूडेंट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या सो दिस वे वी कैन गिव द ज्वाइनिंग. इसका मतलब क्या, तीनों कंडीशन अगर ट्रू है, तीन कंडीशन है, marks 1 greater than equal to 60 and marks 2 greater than equal to 60 and marks 3 greater than, all three condition are true, then only we can display the record. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है. वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है क्या? मार्क्स 1 50 का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं. 60 का दे रहा है. लेकिन जो रिकॉर्ड्स तीनों कंडीशन ट्रू है वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है. अभी इसके उल्टा करते हैं, एंड की जगह और, एंड की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? और. एनी वन कंडीशन इज ट्रू वी कैन सी द रिकॉर्ड. एनी वन का मतलब समझ में आता है. मार्क्स 1 अगर ग्रेटर देन 60 है उनका भी दिखा, ग्रेटर देन मार्क्स 2 होगा तो भी, मार्क्स 3 होगा तो भी, तीनों में से कोई, इसलिए सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं. और में एनी वन कंडीशन. गॉट इट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. या नाउ नॉट कंडी, नॉट ऑपरेटर. अगर मुझे ऐसे देना है नॉट मार्क्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या हुआ? नॉट से क्या हुआ? जिनका मार्क्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं है वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है. नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है सारे. एंड और एंड नॉट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. नॉट से क्या हो रहा है बता मुझे? नॉट से क्या हो रहा है? जिनका जो मार्क्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं है वही रिकॉर्ड आ रहा है. 50 वाला है, बाकी सारे 60 अबव है. मार्क्स 1 आप ऊपर के टेक्स्ट में देख सकते हो, 75 76 84 71 दिस आर ऑल मार्क्स 1 इज ग्रेटर देन 60. ओनली नयन रिकॉर्ड मार्क्स 1 आपको लेस देन 60 है, इसीलिए वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है. गॉट इट? यस स्टूडेंट. Yes, sir. ओके, तो ये हुआ लॉजिकल ऑपरेटर भी हो गया. लॉजिकल ऑपरेटर और लेस देन ग्रेटर देन, ये सारी चीजें हो गई. तो आज के लिए इतना काफी है. आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लाइक क्लॉज से लेके करेंगे. गिव मी अटेंडेंस. आई वांट टू फाइंड आउट दोस स्टूडेंट्स आर लेट. उनका अटेंडेंस के लिए मुझे देखना है अभी क्या बोलते हैं वो लोग. सिंसियरली मुझे रेज हैंड करके बताना है कि बाबा वी आर लेट. चलो, रोल नंबर 1 to 10 अटेंडेंस. 7. हेलो. 1 to 10 कितना? रोल नंबर 7. अभी ज्वाइन हुए राइट? No, sir. नो सर, मैं पहले ही ज्वाइन था, मैं गलती से एग्जिट हो गया था. ऐसे एग्जिट नहीं होता है बेटा, इसमें एडमिट है ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है. डोंट बिकम स्मार्ट. अरे सर, मैंने गलती से मैंने बैक का बटन दब गया था, इसके लिए. डोंट बिकम स्मार्ट. आई सेड डोंट बिकम स्मार्ट. यहाँ अच्छा, तो- एडमिट का प्रोसेस ऐसा है कि आप बाहर भी आओगे और वापस भी जाओगे तो यू कैन एडमिट रीजॉइन अगेन डायरेक्ट. अच्छा, तो ठीक है सर, आपको मेरे 9 बजे का जो लेक्चर ज्वाइन किया उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको. हाँ, बट ऐसा करो मत, लेट ज्वाइन मत करो. ओके, नेक्स्ट. गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो लेकिन आप एक्सक्यूजेस बहुत देते हो. चलो नेक्स्ट वन. हु इज द 1 to 10? 9. Sir, 12. 12. Yeah. You are also coming late? No, I'm on time only. Okay, fine. Next one. Yeah. 11 to 20. Who is there? 11 to 20. Give me attendance. 15. Next. Hello. 21 to 30. 24. 24.
Nage. So give me attendance fast. Sir, 31. 31 to 40. 31. Okay. 37. Mansi, na? Yeah, you are also coming late, beta. 31. Sir, 36. Hello. Next, 36. 37. 37. You are also coming late, beta. Nitesh. Next time, don't Sir. come late. 42. 42. 40. 42. 40. 42. 45. 40. 41. 41. 45. Next. 52. 52. Sir, 42. 50. Sir, 42. 42 किया ना 42 नहीं okay Mehta next 55. 55 Rodriguez okay next so those who are today coming late next time we will not join you after 5-10 minutes chalo next one 51 to 60 61 to 70 70. 68. 61. 68, sir. 61 60 61 68 70. Hello, next. 70. 70. 75. 71 to 80. 75. 75. 76. 76. 73. 73. Sir, Okay, 80. 73, 75, 76. Again 80. 80. Okay, 80. Next. 91 to 100. 91 to 100. 94. 94. 94. Yeah, Nelson is always present. Okay, next one. Hello, over. Anyone left? I read all the roll numbers. See that properly. First upon 7, then 9, then 12. After that 15. After that 24. 15, 24. Then 31, 32. Then 36, 37. Then after that 40, 41, 42. Then after that 45. Then 52, 55, 60, 61, 68, 70, 73, 75, 76, 80, then 94, right? Anyone? Anyone left? Sare ho gaye? Okay, thank you. Leave the class. Thank you, sir. Hello. Yeah, Thank you, sir. thank you.